Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market matters. But do remember that, as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2331 4444, 23717106, and our third dedicated line is 23421050. And as always, if you're calling from outside Delhi, you need to prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद एस रंगाभाष्यम। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हमेशा की तरह इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुशील सिन्हा। सुशील जी, आपका मार्केट मंत्र में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Vibhuti. The top stories. Key domestic indices close with losses. Sensex declines 216 points to close at 63,168. The first tranche of sovereign gold bond for the financial year 2023-24 opens for subscription today, and gold prices fall 225 rupees to trade below 60,000 rupees per 10 grams for August contracts at the multi-commodity exchange. घरेलू शेयर बाजार मामूली नुकसान के साथ बंद। सेंसेक्स 216 अंक गिरकर 63,168 पर बंद हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सीरीज 1 आज लॉन्च हुआ। 23 जून तक कर सकते हैं आवेदन। और सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध के लिए 225 रुपये की गिरावट के साथ 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। शेयर बाजार का हाल लेते हैं। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज दिन के कारोबार में सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब पहुंचने के बाद मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स 63,200 अंक से नीचे बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 18,800 के स्तर से नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 216 अंक या 0.34% की गिरावट के साथ 63,168 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 71 अंक या 0.37% की गिरावट के साथ 18,755 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.8% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप में 0.24% की वृद्धि हुई। Well, as Vibhuti just mentioned, key domestic indices closed with marginal losses after having reached near all-time highs during intraday trade today. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended below the 63,200 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange also settled below the 18,800 level. The Sensex declined by 216 points or 0.34% to finish at 63,168. The Nifty also slipped 71 points or 0.37% to close at 18,755. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.08%, while the small-cap index added 0.24%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 10 firms appreciated, while those of 20 depreciated.
Bajaj Finance was the top gainer as it climbed 2.5%, followed by Bajaj Finserv rising 2.2% and Tech Mahindra adding 1.3%. On the other hand, Kotak Bank declined 1.8% and Axis Bank fell 1.5%. NTPC lost 1.4%. In sectoral indices, 5 sectors logged gains while 15 witnessed losses. IT index surged 0.4%. Both healthcare and industrial sector advanced 0.2% each. On the other hand, telecommunication sector declined 1.3%, and similarly power and utilities indices fell 0.9% each. The overall market breadth was negative as shares of 1,613 companies advanced while those of 2,057 declined. A total of 157 shares, however, remained unchanged. और इसी बीच दिल्ली से हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, विजय जी अपना प्रश्न पूछें। Hello Vijay, do we have you online? हाँ जी। Yeah, please go ahead. Put your question. जी विजय जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। सर ऐसा है कि हमारा SBI का खाता गांव का है जी, तो यहाँ से पैसे हम निकाल सकते हैं बैंक से? जी शिशिर जी कह रहे हैं कि SBI का जो खाता है वो गांव का है, अब वो किसी तो शहर में है, क्या वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए CBS फैसिलिटी हो जाने की वजह से जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं, अब वो परेशानी नहीं है कि आपका खाता कहाँ है और आप कहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। दरअसल देखिए आजकल बैंक की शाखाओं में भी लोग काफी कम ही जाते हैं। अब तो सारा लेन देन जो है वो ATM के जरिए होता है और कई जगह पर ATM में नगद जमा कराने की भी सुविधा होती है, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। वो बिल्कुल कहीं भी है, आप आसानी से बैंकिंग कर सकते हैं। इसी बीच मुंबई से हमारे एक और श्रोता हैं गोपाल जी अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार जी। सर मेरे 2 सवाल है। पहला तो ये जो महंगाई दर बोलते हैं कि RBI 4.25 पे आ गई है जी, क्या तो है नहीं, सब वहाँ के प्राइसेस तो सब वहीं पे वहीं है जहाँ पे जो थी पहले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा सवाल ये है कि कमोडिटी के जीरा कमोडिटी था 2023 में 22,000 रुपये क्विंटल था, 2022 में 22,000 रुपये क्विंटल था, आज 2023 में 50,000 रुपये क्विंटल हो गया। सर ये तो आसमान में मसालों के भाव चल रहे हैं, फिर महंगाई कहाँ कम होगी सर? और 28,000 बढ़ गया सर ये क्विंटल पे। देखिए महंगाई दर की जहां तक आपने बात कही कि ये 4.25% जो कि हमने मई के महीने की देखी है, जिसकी घोषणा 12 तारीख को की गई थी, ये पिछले कुछ समय पहले के आंकड़े हैं। अब आपका सवाल है कि जमीनी स्तर पे आपको महंगाई दर में उतनी कमी नहीं दिख रही है, लेकिन देखिए हकीकत ये भी है कि साग सब्जियों की बात अगर हम करें, फल की बात करें, अनाज की बात करें, सभी के दाम में कमी आई है और आप अगर देखेंगे अलग अलग बाजार में उसमें अंतर दिख रहा है। हो सकता है कि किसी क्षेत्र जगह पर, किसी क्षेत्र विशेष में शायद हो सकता है थोड़ी कीमत आपको ज्यादा दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर आप उसके वहीं पे आप किसी दुकानदार से पूछे तो आपको बता सकता है कि दाम में कितनी कमी आई है या नहीं आई है। रहा सवाल also edible oils which has seen a substantial fall. Edible oil and as well as the vegetable prices. If you could just go to the market in the morning and buy some vegetables, you can realize that what kind of prices fall we have, and that is why we are seeing deflation in vegetable as well as in some other prices also. Of course, the cereal prices is still very high. There is no doubt about it. It is still, the inflation rate is still in the double digit. Now, coming to a specific question about jeera, I mean, you will be surprised. जैसा हम लोग कहते हैं ना कि महंगाई दर पे जब हम चर्चा करते हैं तो एक को भूल जाते हैं, थाली में मसाले का बहुत महत्व होता है और मसाले की महंगाई दर सभी सामान के महंगाई दर में सबसे ज्यादा है। तो अगर जीरा के दाम में बढ़ोतरी हुई है तो वो महंगाई मसाले में निश्चित तौर पर दिख रही है। हमारे लिए राहत की बात इतनी है कि थोड़े से अनाज के दाम कम हुए हैं, सब्जियों के दाम कम हुए हैं, अंडा के दाम कम हुए हैं और दूध अभी भी थोड़े से ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। लेकिन अगर हम पूरे बास्केट को लेकर के देखें तो कुछ चीजों के दाम बढ़े हैं, कुछ चीजों के दाम कम हुए हैं। Right. Let's move on and take our next caller. We have Jitendra joining us from Jaipur in Rajasthan. Good evening and welcome to Market Mantra. हाँ सर, थैंक यू सर। मेरा 2 प्रश्न है। एक तो सर कल मैं भूल गया था प्रश्न करना म्यूचुअल फंड में जी, तो आया है क्या एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म, उससे डायरेक्ट
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा पड़ेगा, ऐसा कुछ सेबी का रूल आया है। दूसरा है कि सर क्या नाम है, ये जो बैंक से कैश आरबीआई में जो लोग ले जाते हैं गाड़ी से, उस कंपनी का शेयर लेना कैसा ठीक रहेगा कि नहीं? ओके देखिए, म्यूचुअल फंड के मामले में मैं माफी चाहूंगा, अभी उतनी जानकारी मेरे पास उसके बारे में नहीं है। जो आप एक्सपेंसेस रेशियो की बात कर रहे हैं, अगर रविवार को जब धीरेन्द्र का शो होता है तो मेरे ख्याल से वो आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। दूसरा सवाल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक हम आंसर्स देते नहीं है कि आपको कहां लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका प्रश्न एक खास कंपनी से जुड़ा हुआ है कि क्या उसमें आपको लगाना चाहिए या नहीं। क्षमा चाहेंगे, हम उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी बीच मुंबई से हमारे अगले कॉलर हैं कन्हैया। कन्हैया जी प्रश्न पूछें। हेलो। यस सर। या कन्हैया, या वेलकम टू मार्केट मंत्रा। गो अहेड, पुट योर क्वेश्चन। हाँ, वेलकम सर। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बॉम्बे। या सर, दैट इज MCX exchange, no? Yeah, the multi-commodity exchange. Multiple commodity exchange. So how many commodities include in that exchange, sir? Please explain it. Okay, fine. अगर देखिए कमोडिटीज की हम लोग अगर बात करें तो इस समय में अगर आप देखें तो लगभग 2 दर्जन के करीब में कमोडिटीज हैं जिनके कारोबार होते हैं, और इसमें एक जो कि सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हमेशा होती है वो होता है सोने और चांदी की। कमोडिटीज मार्केट में 3 जो कमोडिटीज है उसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, सोना, चांदी और कच्चा तेल। इसके अलावा गेहूं भी को लेकर के चर्चा होती है, और खासतौर पर उस समय में जब गेहूं के दाम बढ़ जाते हैं। सब्जियों के मामले में इकलौता जो एक सब्जी है जिसकी ट्रेडिंग कमोडिटीज मार्केट पे होती थी, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, अब उसके ऊपर रोक है, और वो है आलू। तो ऐसे और मसालों में जो है वो कमोडिटीज ट्रेडिंग होती है। तो 2 दर्जन के ज्यादा के करीब में जो जिन्स हैं जिनका कारोबार जो है वो कमोडिटीज एक्सचेंज पे होता है। MCX और NCDX ये 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं, और दोनों एक्सचेंज में खासियत है कि MCX में अगर आप देखेंगे तो प्रेशियस मेटल का ज्यादा होता है, और NCDX की बात करें तो एग्री कमोडिटीज की वहां पे ज्यादा होती है। इसी बीच मुंबई से एक और कॉलर हैं हसमुख जी। हसमुख जी, आपका स्वागत है मार्केट मंत्रा में। अपना प्रश्न पूछिए। या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई एंड एट अबाउट 24 PE, और दूसरी तरफ जो अपने टैक्स कलेक्शंस है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, इट्स ऑल टाइम हाई। तो व्हाट इज योर व्यू फॉर निफ्टी इन अ शॉर्ट टर्म? थैंक यू। There are 2 issues at this moment. When we are talking about Nifty at all-time high, we need to keep an eye on what kind of situation we are going to have in Europe. Because the kind of economic situation in Europe and some of the countries are already in recession. Some of the Asia Pacific countries are also in a bad shape. Some of the countries are facing slowdown. So we cannot just depend upon the domestic factor. We also have to think about the global factor. Domestic factors, some of the factors are very good. The 2 issues where we have to keep in mind is the monsoon and of course the crude oil prices. So monsoon, as of now, most of the agencies are saying normal. And also when we talk about the crude oil prices, we are not seeing much rise into that. So these 2 are the positive, but the real, what we call as the headwind is the geopolitical situation, because our manufacturing activities will be affected because of that. So keeping all those things in mind, in the short run, say in 3 to 6 months, we expect that the Nifty will be at a very reasonable level and it will rise further. And if the monsoon is better, then we can see a much more rise in Nifty as well as in Sensex. Yeah. And Shishir, you spoke about the European scenario. The war between Russia and Ukraine seems to be going nowhere. You know, it's close to 15 months. And as thought initially that it would be a very, a quick war within a week or 10 days, it would be emphatic and you would know what has happened. But it doesn't seem to be going anywhere. I mean, it's an irony that war does not have any expiry date. So when it is going to end, nobody can predict that. And considering the both sides are taking a different stand altogether, and the kind of support each of the side getting from various economies, we are not seeing any kind of, or we are not seeing end of the war in near future. It may it may continue for some more time, but the good news is that the impact on the global economy is now it's coming down.
So I don't think that global economy will much be worried about the Russia-Ukraine war, what it used to be 6 months back or something like that. But now that worry has come down, but still there is some worry on that. Let's continue with phone calls. We have N.R. Prasad joining us from Bangalore. Good evening, Mr. Prasad, and what's it that you'd like to discuss? Hi, good evening, Market Mantra. Yeah, hi. Prasad from Bangalore. Yeah, please go ahead, put your question. See, in the mid-cap, 6 out of the top 10 companies valued almost crosses 1.13 lakhs. Mm-hmm. Okay, now my question is, should we hold and for some more time for a better realization or book the profit now itself? Okay. Mr. Prasad, if you allow me, I would like to answer your question which you raised last Monday about the capital gain taxation. And I just want to highlight 2 points. One is, of course, when we talk about loss from the speculative business, that cannot be set off against any income other than income from the speculative business. However, non-speculative business loss can be set off against income from the speculative business. Number one, your question is specifically about the long-term capital gain and the short-term capital gain. Long-term capital loss cannot be set off against any income other than income from long-term capital gain. But short-term capital loss can be set off against long-term or short-term capital gain. So since last time you asked about that, I did not have the exact provision, so I'm answering now. Now coming to a specific question about the mid-cap, my advice would be that when there is an opportunity to book the profit, please book the profit, because the kind of uncertainty we are seeing at the global level, it is very difficult to predict that what will happen in next 3 to 6 months. Of course, we are saying, and if you have heard just 5 minutes back, I said that next 3 to 6 months, if the monsoons are good, we may see Nifty and Sensex at a very high level. But still, my advice would be that whenever there is an opportunity, book the profit and wait for the lowering of market, then you can make a fresh investment. इसी बीच फरीदाबाद से एक श्रोता हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपकी क्या जिज्ञासा है? प्रश्न पूछिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इससे हमारे पास 2 दिन पहले एक कॉल आई थी कि आप मार्केट में पैसा लगाते हैं क्या हम ऐसे लोगों के बातों में आए कि कैसे विश्वास करेंगे ये हमारे को सही राय देंगे? और दूसरा सवाल ये है कि गोल्ड में हम और कितनी उम्मीद रखें कि ये कितना डाउन जाएगा, और या कितनी उम्मीद रखें कहाँ तक पहुंचेगा? सुनने में तो ये आ रहा था कि 80,000 तक ये सोना पहुंचने की उम्मीद मार्केट में है। Yes, Shashir, what would you advise him? सबसे पहली बात, सुनी सुनाई बात पे तो शेयर बाजार में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और कोई आपसे अगर पूछे कि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप ऐसे फोन को कोई जवाब ही ना दे, क्योंकि कोई भी इस तरह के जो अनवांटेड कॉल हैं वो आपके लिए नुकसान कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसी राय दे सकते हैं, आपको कुछ झांसा दे सकते हैं, आपको कुछ प्रलोभन भी दे सकते हैं कि आप इस शेयर में लगा लीजिए या इस ग्रुप ऑफ शेयर में लगा लीजिए, आपको इतना फायदा होगा। और अब देखिए, एक बात, एक सामान्य मानव प्रवृत्ति है, हम सभी मुनाफा कमाना चाहते हैं, हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं। और कोई कहे कि यहाँ पैसा हो जाएगा और जहां पर थोड़ी हमारी समझ कम होती है, इसमें कोई स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि शेयर बाजार के मामले में थोड़ी सी कई बार हमारी समझ जो है वो कम हो जाती है और हम उस झांसे में आ जाते हैं और हमारे पैसे डूबने की आशंका होती है। तो मेरी सलाह होगी कि ऐसे अनवांटेड कॉल को बिल्कुल नजरअंदाज करिए। अगर आपको सलाह लेनी है तो जो सर्टिफाइड ब्रोकर्स हैं उनके पास जाइए, उनसे बातचीत करिए, आमने सामने बैठ करके बातचीत करिए, या आप जिस बैंक में आप बैंकिंग कर रहे हैं वहां पर जो आपका स्टॉक मार्केट डिवीजन है उनसे आप बात कर सकते हैं। दूसरा जो इनका सवाल था 80,000, मेरे ख्याल से वो सेंसेक्स के लिए वो पूछ रहे थे। देखिए, ये कई एजेंसीज हैं जिन्होंने 80,000 तो छोड़िए 1 लाख की बात कर रहे हैं कि हमारा जो है उस साल के अंत में 1 लाख तक भी जा सकता है सेंसेक्स। 2 ही बातों को आपको ध्यान रखना है कि अगर मॉनसून सामान्य या उससे बेहतर रहा और दूसरा वैश्विक स्तर पर हमको बहुत ज्यादा तनाव देखने को नहीं मिला तो सेंसेक्स में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिर मैं एक बार यहां पर एक डिस्क्लेमर दे दूं कि शेयर बाजार की सही भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कर सकते कि 80,000 पहुंच जाएगा या 90,000 पहुंच जाएगा। बाजार में निवेश कर रहे हैं, जब तेजी हो मुनाफा कमाइए, नीचे आए पैसा लगाइए और निवेश करिए। आज ही देखिए कि आज 2 बजे के आसपास तक जो है जो छोटे मझोले कैप कितना शानदार काम कर रहे थे, फिर उसके बाद मौसम बदला ना, देखा नहीं आपने बारिश कैसे हो गई है।
इसी बीच मुंबई से हमारे एक श्रोता हैं हरीश जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो मार्केट मंत्र, नमस्कार। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। हाँ साहब, अगले 3 महीने में पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना कितना सही रहेगा साहब? अगले 3 महीने में किस टर्म डिपॉजिट्स का आप बात कर रहे हैं कि कहां पे आपको लगाना? देखिए, एक बात आपको समझना चाहिए कि अब ब्याज दर बढ़ने का सिलसिला अब रुक गया है। हाँ, वो तो रुक गया, वो पता है। हाँ, तो इसी सिलसिले में आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी कुछ बैंकों ने तो टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें कम कर दी हैं। तो अगर अभी आप तुरंत लगाना चाहते हैं तो एक मौका है, ऊंचे ब्याज दर पर आप जाएं। इसके अलावा एक विकल्प आपके पास ये भी है कि आप डाकघरों की बचत योजनाओं में पैसा लगाएं, वहां पर भी आपको ब्याज दर बैंकों के मुकाबले में ज्यादा मिलेगा। रुपये का हाल जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81 रुपये 94 पैसे पर लगभग सपाट बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 102.55 पर कारोबार कर रहा था। And let's take our next caller. We have Yogesh joining us from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. Yeah. Go ahead. Put your question. Actually, I want to know whether मतलब what is the fundamentally अगर किसी कंपनी को देखा जाए तो उसको किस तरीके से देखा जाए जिससे कि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ओके, देखिए, कंपनी को अगर पढ़ना हो तो आपको उसके बैलेंस शीट पे जाना चाहिए और बैलेंस शीट में आपको 2-3 चीजें देखनी चाहिए। 2-3 चीजें क्या है जिसको हम लोग कहते हैं कि टॉप लाइन देखना है, बॉटम लाइन देखना है, यानी कि कितना का कारोबार चल रहा है और कितना उसका मुनाफा है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि जो मुनाफे की चाल है वो कोई अप्रत्याशित तौर पर उसमें किसी 2 साल में उतार चढ़ाव तो देखने को नहीं मिला है कि पता चला कि 5 सालों तक उसमें 10-10, 15-15% की बढ़ोतरी हुई है, छठे साल में अचानक 100% की हो गई, 7वें साल में 80% की हो गई। अगर किसी भी कंपनी में इस तरह का मुनाफा हो रहा है कि जिसको कहते हैं ना कि सड़क पे जब आप चल रहे होते हैं तो बीच में अगर स्पीड ब्रेकर की हाइट ज्यादा हो तो आपके लिए परेशानी होती है। शेयरों को भी पढ़ना हो, कंपनी को पढ़ना हो तो कंपनी के मुनाफे पर यह नजर जरूर रखिए कि बहुत तेजी से या बहुत अचानक कोई ऊंचा उसमें उछाल देखने को मिले, उस कंपनी से आपको बचना चाहिए, चाहे वो कमाई की बात हो चाहे मुनाफे की बात हो। अगर ये 2 चीज पे अगर आप नजर रख लेंगे, जो बहुत आसान है जानना, और इसके लिए आपको क्या करना है, बीएसई और एनएसई की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, उस कंपनी का शेयर का अगर आप जब होम पेज पे जाएंगे, उस कंपनी का जब जैसे ही आप अपने राइट साइड पे क्लिक करेंगे उस कंपनी का नाम, तो एक होम पेज खुलेगा। उस कंपनी का जो पिछले 5-7 क्वार्टर का और पिछले 5 साल का आपको आमदनी और मुनाफे का हिसाब किताब मिल जाएगा। एक बार देख लीजिए। बहुत तेज उतार चढ़ाव से बचना है और सामान्य तरीके से चल रहा हो उस पर आपको नजर रखना है। एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल जानते हैं। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। 1% की गिरावट के साथ जापान का निक्केई सबसे बड़ा लूजर रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग में 0.6% की गिरावट आई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.5% की गिरावट आई। यूरोपीय बाजार भी दिन के कारोबार में नकारात्मक रहे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.4%, फ्रांस का कैक 0.5% गिरा और जर्मनी का डेक्स 0.6% गिर गया। And as we know, the American markets were closed on account of the weekend holiday of Sunday. Let's take a look at the oil prices. Crude oil prices fell today as questions over China's economy overweighed OPEC plus output cuts during intraday trade. Brent crude was trading at $76.37 per barrel, while the West Texas Intermediate crude price was at $71.37 per barrel when reports last came in. Let's move on and take a look at our second headline story. The first tranche of the sovereign gold bond for the financial year 2023-24 opened for subscription today. It will close on Friday. The second tranche will be available from the 11th to the 15th of September this year. The central bank, in collaboration, has decided to issue 2 new tranches of the sovereign gold bond during the first half of financial year 2023-24. The issue price for Series 1 has been fixed at 5,926 rupees per gram of gold, while there will be a discount of 50 rupees for
for those investors who subscribe it online, and the payment is made through digital mode. इसी बीच दिल्ली से हमारे एक श्रोता हैं पीके बनर्जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। सर, हमें गोल्ड में डायरेक्ट गोल्ड खरीद लेना चाहिए या इसका बॉन्ड खरीदना बेनिफिट है? क्योंकि गोल्ड तो कभी भी जाके हम सेल कर सकते हैं, दिन को आधी रात को। और हमें एक बात और पूछनी है कि एफडी में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्या इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने के अभी चांसेस हो रहे हैं कि अभी यही रेट सेट कर जाएंगे? Yes, let's start with gold. बैनर्जी साहब, आपने एक बिल्कुल जिसे कहा जाए एक संजोग है कि हम लोग अभी सोने की बात कर रहे थे और आपने सोने का सवाल पूछा। देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि आप निवेश कर रहे हैं या आप खरीद रहे हैं। निवेश अगर कर रहे हैं तो आप वहां पर ज्वेलरी में निवेश ना करें। निवेश करना है तो सोने का बिस्किट लीजिए या फिर आप डिजिटल गोल्ड लीजिए, जिसे हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, गोल्ड ईटीएफ जिसको हम लोग कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा विकल्प इसलिए भी है क्योंकि आपको बाजार के भाव पर आप निवेश करते हैं, 8 साल तक आपको 2.5% का ब्याज मिलता है और वो ब्याज जो मूल कीमत होती है उस पर आपको मिलता है, और 8 साल के बाद जब आपका उस समय जो बाजार की कीमत होती है वो पैसा आपको वापस होता है। खास बात यह है कि उस समय आपको टैक्स नहीं देना होता है कैपिटल गेन पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। हाँ, 5 साल के बाद जब आप निकालते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इंडेक्सेशन के हिसाब से होता है। दूसरी बात है कि अगर आप ईटीएफ में जाते हैं, गोल्ड ईटीएफ में जाते हैं, ये भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आप गहना खरीदते हैं, सोने का गहना खरीदते हैं, तो आपकी दिक्कत क्या होगी कि जब आप उसे बेचने जाएंगे तो आपको उसमें मेकिंग चार्जेज आपके कट जाएंगे, और जब गलाया जाएगा उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखें कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बिस्किट या डिजिटल गोल्ड आपके लिए बेहतर है। इनका दूसरा प्रश्न था, spoke about the fixed deposits and the interest rates. That's what so fixed deposit and interest rates. So most of the banks have started cutting the interest rate on fixed deposit. So I think the time is very good if you want to if you want to put money in the fixed deposit. Please do it in next 5 to 7 days. You will be in a position to get higher interest rate for your fixed deposit because that's a contractual application. And after that, you will have an option to go into the post office saving scheme, जहां पर आपके लिए ब्याज दरें जो हैं वो ज्यादा हैं। सोना का हाल जानते हैं बाजार में। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के अनुबंध के लिए सोने की कीमतों में आज 225 रुपए की गिरावट आई। सोना 59,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 350 रुपए गिरकर 72,340 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,960 और 80 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में मंदी के साथ चांदी $24 और 22 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Shishir, as far as gold prices are concerned, what would you say? Domestically the rates have fallen a bit, but moving ahead, once the marriage season, the festive season begins, then you see the uptrend in prices. So you talked about marriage season. So it's an irony, when there is a global peace, the gold prices will come down. Okay. When there's too much disturbance in the global economy, and uncertainty is there, then the gold prices will go up. I mean, we should not pray for any kind of uncertainty or any kind of disturbance in the global economic order. But as of now, what we are expecting that during next 6 to 8 months, the gold prices will be slightly in a stable order. And after that, if we see any kind of geopolitical situation, then there could be some problem. सुशील जी, कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और अंग्रेजी में अब हेडलाइंस के साथ हैं एस रंगाभाष्यम। Key domestic indices close with losses. Sensex declines 216 points to finish at 63,168. The first tranche of sovereign gold bonds for the financial year 2023-24 opens for subscription, and gold prices fall 225 rupees to trade below 60,000 rupees per 10 grams for August contract at the multi-commodity exchange. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Namaskar. Market Mantra.